Hello student, today we will do some exercise numericals from electrical field and charges, chapter 1, 12th class physics, right? From question number 10 we will do this, and earlier question I think it is very easy, you can do it only with putting a formula itself. अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर Q10 में क्या बोलता है? Electrical dipole moment with dipole moment of 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electrical field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. So it is the electrical field and the dipole. Case of this, एक डाइपोल है, कह रहा है ये 30 डिग्री एंगल में इसके साथ अलाइनमेंट है और the value of electrical field they have given mode of electrical field five into 10 to the power 4 Newton per coulomb and dipole moment is P dipole moment as you denoted 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. Coulomb into meter. Why? Because these are rotational momentum, angular momentum. So it is the length into the force, length into the charge. Here in case of here it is charge. Suppose this is, अगर मैं ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, that means it is a plus charge. That's why it is repel here and it is pushing this side, and it is negative one. That's why it is coming this side. And electrical field positive charge, it is a uniform electrical charge side वैसे जाएगा. ठीक है. अब इसके अंदर बोल रहा है कि भाई what is the torque. ठीक है. अब देखिए टॉर्क हम जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड जितना है इनटू पी इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज टाउ इटसेल्फ इज आल्सो ए वेक्टर. ठीक है. ये इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट खुद का बना हुआ है. दिस इज द पी वेक्टर, इट इज द मॉड ऑफ पी वैल्यू कूलम्ब मीटर. एंड कूलम्ब मीटर कैसे है? दिस इज द चार्ज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस डिस्टेंस. So tau is cross product of E cross P. ठीक है. And this is, I put the mod value, it is not mod value. First initially it will be the cross product of this one. So this will be mod value and this will be this, and the angle, this angle will be sin theta because ये जो टॉर्क फील करेगा इसकी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, दिस इज 90 डिग्री, दिस विल बी, ये कितना में करेगा, यानी इसकी एक्सिस अगर ऐसा होगा ये परपेंडिकुलर में ऐसा होगा. इट इज दिस वन, सो दिस विल बी sin थीटा कंपोनेंट. इफ इट इज द E, सो दिस विल बी E sin थीटा, राइट. करेक्ट. So here it will be, just put the value here, 10 into 10 to the power 4 multiply 4 into 10 to the power minus 9. ठीक है. and sin theta here, theta is sin 30. अब देखिए 5 4 या 20, then into 10 to the power minus 5 and sin 30 is the half. so this is एक और जीरो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. so this will be 2 and this one, this is 10. So this is only 1, so this will be 10 again. So minus 5 plus 1, this is 10 to the power minus 4. And what will be the unit? Electrical field unit is the Newton per coulomb. देखिए न्यूटन पर कूलम होता है और इसकी यूनिट कितना हो गया ना, कूलम इंटू मीटर होता है. तो कूलम कूलम कट गया, कितना हो गया, टॉर्क इज न्यूटन मीटर. टॉर्क इज, so tau is 10 to the power minus 4 Newton meter. So this is the answer. Okay, let's move to this next one.
To score good marks in physics, we need to do numericals in exam perfectly. 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्यू नंबर 11, a polythene piece wrapped with a piece of wool fabric is found to have a negative charge. Polythene is getting negatively charged, and the charge amount is 3 into 10 to the power. The charge minus q charge by polythene due to rubbing with wool, it gains 3 into 10 to the power minus 7 coulomb charge. ठीक है? This coulomb charge is getting. Estimate the number of electron transfer from this and from which to which. Obviously, जब वूल और पॉलीथीन में रबिंग हुआ और पॉलीथीन ने चार्ज गेन किया, ठीक है, पॉलीथीन ने नेगेटिव चार्ज गेन किया, सो ऑब्वियसली वूल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू पॉलीथीन and it gets negatively charged and wool get positively charged. Very simple ना? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर उधर चला गया तो पॉलीथीन अब नेगेटिवली चार्ज हो गया. Now the question is how much is the electron is the quantization of charge. प्रॉपर्टी के अंदर आएगा. ये तो वही चला गया because the basic unit of the charge transferring at the micro level it is the electron, the charge of electron. We know the charge of electron is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb per electron, right? So to get this much amount of coulomb, how much electron need to be transferred from this wool to polythene is A into E equal to, this is 3 into 10 to the minus 7 total. So N equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb over 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. So this will be the number of electron needs to be transferred. ठीक है? So this is 30 over 16 and this is 10 to the power 12 because 19 minus it will be up तो positive हो जाएगा. So 19 minus 7 is 12. So this is 2, this is 15. So this is 1.8. ठीक है? Yes, 1.8 into 10 to the power 12 pieces of electron needs to be transferred from wool to polythene to get the charge 3 into 10 to the minus 7 coulomb. Now they are asking estimate the number of electron transfer. Okay, the question number B, is there a transfer of mass from wool to polythene? Wool to polythene में कोई mass में transfer हो? It's a very tricky one, very easy one also. देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गया, क्या मास में ट्रांसफर हो गया? एज वी नो इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट ऑफ मास. एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस इज 9.1 into 10 to the minus 31 किलो पर पीस. अब देखिए कितना कितना नेग्लिजिबल है. स्टिल इन माइक्रो लेवल इफ यू वांट टू you know calculate, so the total mass transfer initially at macro level you will say it is negligible. We cannot determine the mass transfer by normal balance or whatever like this, but in conceptually micro level में the total mass transfer it will be m electron, okay, one electron mass, or you can say em into number of electron n. This is 9 into 1 into 10 to the minus 31 into 1.8 into 10 to the power 12 piece. So this will be the kilo. Okay, you can calculate from this one. Into 10 to the power, this one will be
minus value, this is 9, this is 2, then this is 1, or you can say 1.62 into 10 to the power minus 20 kilo is transfer mass, and it is very insignificant, right? So let's move to the third question, question number 12. Two insulated copper charge question number 12. Two insulated charged copper spheres, दो कॉपर स्फीयर इंसुलेटेड है, ये भी कॉपर स्फीयर इंसुलेटेड है and separated by a distance from center to center 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge of each is 6.5? The charge Q, this is both Q plus, and Q plus is they are saying 6.5 into 10 to the power कितना कूलम है भाई, 10 to the power minus 7 कूलम. So what is the repulsion force? Force will be repulsion of force because they similar charge, right? The radii of A and B are negligible compared to distance. हमने इसलिए पॉइंट चार्ज ही कंसीडर कर लिया, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, बिकॉज जैसे इसने बोला था तो मैंने पहले ही सेंटर टू सेंटर बोल दिया, एंड देयर सेइंग कंडीशन इज इट इज नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इज सो हाई, infinite distance in terms of radius. Now calculate the force acting on this first question. So force is कूलॉम लॉ से हम क्या जानते हैं, Q1 K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. Yes. So from Q1 Q2 by R square, what we can say, so here this is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb into, first you need to put the K value, K कितना है, 9 into 10 to the power 11, 9 into 10 to the power 9 Newton, ठीक है, 10 to the power 9 into this the K value, and this is K1 Q2 is the same over R square. R यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, we need to go for the SI unit, so this will be 0.5 meter, so 0.5 whole square. Correct? So this will be coming 9 into this mass is coming around 1.69 whole figure, and this will be coming 10 to the power minus 3 Newton. मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन पहले किया हुआ है, you can go with your calculation mode. This will be nothing but the 1.52 into 10 to the power minus 2 Newton. The calculation part only you can do at your leisure. So the easy है इसका formula 1. Now they are saying question number B के अंदर बोल रहा है what is the force of repulsion each pair charge double. Now the Q becomes 2. Now this becomes Q becomes double 2Q plus, and this is also become now 2Q plus case 2, and radius become half. This radius becomes now R by 2. Suppose this was R, now it is R by 2. सो बेसिकली क्या हो गया, हम फॉर्मूला में चलते हैं, पहले उसके रेशियो निकाल लेते हैं. सेकंड केस में इनिशियली एफ वाज के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. नाउ सेकंड केस एफ डॉट बिकम्स के सेम, Q becomes now 2Q1, and both cases the Q with the same 2Q into 2Q, and it was the KQ square by R square because K was the same, and this is 2Q over R by 2 whole square. So what is happening here actually, Q square, this is 4 multiplied by 4, also this is R square by 4. So 4 will be comes up,
and this will be here. So this is becoming actually 16 kq square by r square, that is 16 times of earlier force. ठीक है, क्योंकि earlier force मैंने निकाल चुका था तो इसलिए बार बार मैं इतना बिगर कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा. So this is 16 f of earlier force. So 16 time, that is 16 into 10 to the power 1.52 10 to the minus 2 Newton. It will become like this. ठीक है, तो if you neglect this one, so low 16 5 are 80, 8 carry, 16 y is 16, 24 like this. I neglect this one, 0.5 only, 0.2, so this is 10 to the minus 2 Newton, or you can say 0.024 Newton, 0.024 Newton. Yeah, ठीक है. So now let's move to the next question. Question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, सपोज द स्फीयर ऑफ ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.2 आर आइडेंटिकल साइज. अच्छा, लिया बेसिक सर, ठीक है, दो चार्ज बॉल जो लिया था स्फीयर आइडेंटिकल साइज, ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड, एंड फाइनली फ्रॉम द बोथ what is the new force of repulsion between A and B. ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा लग रहा है, अब चीज़ों को समझे. लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला था दो चार्ज ऐसे था, इंसुलेटेड चार्ज, ठीक है, इंसुलेटेड चार्ज जो है लास्ट टाइम. अब ये दोनों सेम साइज की बोल रहा है, ये A and B आर बोथ इन सेम साइज एंड देयर चार्ज सिमिलर चार्ज एज आई टोल्ड. 1.12 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो दिया था उसमें बोला था सेम चार्ज है. नाउ दे आर सेइंग एक अनचार्ज्ड ऐसे एक कंडक्टर बॉडी है, एक अनचार्ज्ड बॉडी ऑफ सेम साइज सेम मटेरियल बॉडी इन कॉन्टैक्ट ऑफ फास्ट. अब पहले के साथ हमने कंडक्ट कर दिया सेम साइज. माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, सो इट इज कंसीडर इट्स सेम साइज. तो एक साइज की एक दूसरा हमने थर्ड जो है इसके अंदर चार्ज करा है, इसे सी. नाउ व्हाट विल हैपन वंस यू पुट दिस, यू नो, नाउ इट बिकम्स द टू, एक सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा, बोथ आर एक्टिंग एज ए टोटल सिस्टम. तो इसकी अगर चार्ज इनिशियली Q प्लस था, इसके Q प्लस था, सो आफ्टर गेटिंग दिस वन टचिंग व्हाट विल हैपन, नो, दिस चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, यू नो, अल्टीमेटली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन से खींच लेगा, तो उतना ही देगा जितना उसको आधा आधा हो जाए. दे विल टोटल एज ए सिस्टम वर्क एज ए सिस्टम. सो नाउ आफ्टर गेटिंग टास्क ए विल बी नाउ Q/2, दिस विल बी प्लस 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 प्लस, ये चार्ज रह जाएगा, और C विल ऑल्सो बिकम, ये विल बिकम Q/2 एंड Cy ऑल्सो बिकम्स Q/2 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. ना केस वन, सेकंड टाइम में इसने बोला दिस इज द फर्स्ट टाइम, द नेक्स्ट टाइम इट विल अगेन गेट टच. सो B और C नाउ टच हो गया, टच करा है हमने B और C. नाउ यू आर हैविंग द Q चार्ज एंड इट बिकम्स नाउ Q/2 चार्ज. तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इसका Q/2 है. तो व्हाट विल हैपन नाउ, इस टाइम में इसकी इलेक्ट्रॉन जो था इससे और खींच गया, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ऐसे सोच सकते हैं. सो व्हाट विल हैपन, न्यूटन सिस्टम में भी विल Q और Q2 के बीच में बैलेंस होगा, Q और Q2 के बीच में बैलेंसिंग होगा दोनों का. सो दिस इज 3Q/2 into हाफ, दैट मीन्स 3Q/4, यानी इसके टचिंग के बाद नए कंडीशन के अंदर ये हो जाएगा 3Q/4, this is B, and C also 3Q/4, this is. ठीक है. अब न्यू नॉर्मल जो है, दिस इज न्यू नॉर्मल. नाउ दिस कंडीशन A हैविंग Q/2 चार्जेस, अनइक्वल चार्जेस हो गया दोनों के बीच में नाउ, ठीक है.
अब सी के अंदर जो है सॉरी ड्राइंग इज नॉट सो परफेक्ट। ओके, सो सी के अंदर जो है नाउ दिस चार्ज इज हैविंग 3q/4 पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स इंटरेक्शन होगा दिस विल बी द ultimate one. So this will be A equal to q/2 k q/2 3q/4 kq. This is q1. Suppose this is q1 and this is q2. Suppose this is q1 and this is q2. So this is k q1 q2 over r square, and r is the distance will be same again. Let's think this is the r earlier. ठीक है, कंडीशन सेम दिया था लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से। सो दिस इज नाउ बिकमिंग के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड 3/8। ठीक है, 3/8। अर्लियर क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, दिस वाज 1.52 फोर्स वाज, सो दिस इज बेसिकली 3/8 ऑफ अर्लियर फोर्स। ठीक है, लास्ट कोर्स में जो देखा था F dot suppose, and that F dot earlier we calculated this is 1.52 into 10 to the power minus 2 Newton। ये उनकी फोर्स थी, आपस में इंटरेक्शन पे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस एज यू सेड अर्लियर। एंड इसका वैल्यू जो था वो भी कितना था 6.5 इंटू 10 to the power minus 70 और 10 to the power minus 7 कूलम था। ठीक है, उस केस में फोर्स ये आया था। ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, सो 3/8 इंटू 1.52 इंटू 10 to the power minus 2 न्यूटन इसकी। आफ्टर दिस हैविंग दिस ऑल दिस एक्टिविटी, इसको चार्ज करा के जो चार्ज शेयरिंग हो गया तो उसके बाद ये रहेगा, सो दिस इज 4.5 over 8 इंटू 10 to the power minus 2, so this is 8 5 is 40 or this is okay. This is 10 to the power minus 3, yeah 10 to the power minus 3 न्यूटन ये हो जाएगा इसका। ठीक है, this will be 5.6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, correct? Now let's move to the question number 14. फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, तो उसको न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल में सबसे बढ़िया अच्छा है कि आपको थ्योरेटिकल में कोई अगर समझ में नहीं आता, यू विल गेट कंसेप्चुअली वेरी करेक्ट, क्योंकि न्यूमेरिकली ऐसा कंडीशन बताता है कि यहाँ जाके करना क्या होता है, कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर फिगर एक दिया है इन्होंने, दो यूनिफॉर्म प्लेट दिया है इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। दीज आर टू plates, uniform field plates, like maybe capacitor। इस फील्ड के अंदर कुछ पार्टिकल छोड़ा जा रहा है, 3 पार्टिकल छोड़ा इन्होंने, उनको बताया नहीं कि यह कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस फील्ड के अंदर पास कराया गया है। एंड दे ऑब्जर्व देयर मूवमेंट इन ए डिफरेंट वे। ठीक है, तो उनके हिसाब से उनके कैरेक्टर को उन्हें जजमेंट करने बोला है। फास्ट जो पार्टिकल्स है, फास्ट पार्टिकल्स एक्चुअली मूव्स लाइक दिस एंड दिस डायरेक्शन, ओके। देन सेकंड मूव्स in slightly less direction, and third one moves in just opposite direction or towards negative plate. It is too close coming as per this drawing has been shown. So we have to do like this. So this is one particle, first particle, second particle, and third particle. Now they are asking which particle have the highest charge to mass ratio. High charge to mass ratio. Charge, suppose these are charge Q, or you can say Q, and mass is A. So ratio of 1, ratio of this 1, or ratio 2, or ratio 3, which one is the bigger? Order of this one. ठीक है, ratio, this is suppose this is Q1 M1, Q2 M2, Q2 M2,
ओके, देन दिस इज सपोज यू कंसीडर Q3 M3, तो कौन सा रेशियो ज़्यादा है। अब देखिए इस प्लेट के अंदर ये वाला जो डिफ्लेक्शन है, दिस डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा पहले डिफ्लेक्शन किसका होगा, ये थर्ड नंबर को। तो क्राइटेरिया इज, देखिए ये दोनों ऊपर की तरफ पॉजिटिव क्राइटेरिया है, तो दिस विल बी ऑब्वियसली Q1 विल बी पॉजिटिव, Q2 ऑल्सो पॉजिटिव एंड Q3 सॉरी नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया ना तो नेगेटिव होगा, तो अट्रैक्शन हुआ है। सो दिस इज Q3 इज द पॉजिटिव, राइट। अब देखिए इसके हिसाब से ये ज्यादा रिफ्लेक्शन हुआ, सो मास इज लेस, सो M1 इज लेस देन M2, बट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द प्लेट है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस में हमने पासिंग किया है, और इसकी जो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स बेंडिंग टुवर्ड्स दिस नेगेटिव प्लेट इज मच मोर लेस, इन यानी डिफ्लेक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसके मतलब जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू 3 है, अगर टोटल सबकी चार्ज सेम रखे या रेशियो हम सेम बोले, ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स एंड दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, इवन इलेक्ट्रिकल फील्ड सबके लिए बराबर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो सबके लिए बराबर होता। So F is this F1, F3. Suppose this is F3. So F3 is, this is F2 and this is F1. So F3 is much more greater than F1 और F2. ठीक है, यानी क्या हो गया, F3 ज्यादा भटक गया। अगर F3 ज्यादा भटक गया, दैट मीन्स उसका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता कहाँ से, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा कूलॉम फोर्स से, Q1 Q2 by F equal to Q1 Q1 Q2 by R square. Electrical field the same है, so actually the force will be filled by this one electrical field into Q. Electrical field value into Q charge, this force will be felt by these particles. ठीक है, तो यहाँ के कहते हैं, यहाँ के केस में तो F3 will be EQ3. अब मान लो फोर्स अगर सेम लग रहा था B, अगर अगर सेम लग रहा था, अगर चार्ज सेम होता तो क्या होता, सारे डिफ्लेक्शन सेम अमाउंट में होते, लेकिन मास डिफरेंस होने के चलते मास इज लोअर, ठीक है ना। सो चार्ज इज हाईएस्ट, सो Q इज हायर, Q3 इज हायर देन Q1 एंड Q2, ऑल्सो मास रेशियो ऑफ मास 3 ऑल्सो लेस, तब जगह रेशियो बढ़ेगा ना, दिस विल बी M1 एंड M1 एंड M2, क्योंकि मास जितना कम होगा उसके मूवमेंट इतना डिस्प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा फोर्स, बिकॉज M इक्वल टू F इक्वल टू अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, M में कन्वर्ट हो जाएगा, सो M इज लेस, सो एक्सेलरेशन विल बी हाई, if M is less so acceleration will be high, so in this case this displacement will be faster from this deflection, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन इसकी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज A3 is much more high. So the mass ratio of this one, ratio 3, यानी charge by mass ratio is highest. You can say like this. This is the logic one only, because its deflection gets high. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि भाई कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड E this much of value. What is the flux of field through a square 10 centimeter square side whose plane is parallel to the YZ plane? What is the flux through the same square if the normal of the plane is 60 degree angle with the x-axis? ओके, एक स्क्वायर हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को ले लें, फिर एक्स वाई जेड को डिफाइन करें, दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। देन मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेन है, और इसमें कह रहे हैं ये कौन सी प्लेन में पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू वाई जेड, इट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन,
पैरेलल टू वाई जेड, यानी ये वाला हम ले वाई, तो ये हो गया जेड, ठीक है। तो मान लीजिए ये, मान ली ये कैसे भी ले सकते हैं हम आर्बिट्रेटली, हम इसको घुमा लिया, हमारा कार्टेशियन प्लेन को, 3D प्लेन को हमने घुमा लिया समझ लो। सो यू कैन से लाइक दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और यू कैन पुट दिस वन, और इसको चलो ऐसा करो कन्वेंशन के हिसाब से, देन यू विल नॉट कंफ्यूज। सो वाई जेड प्लेन बोल रहे हैं ना, चलो अब इसको ना करके यहाँ पे करते, फिर तो अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन वो स्क्वायर दिखेगा नहीं ना, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग हियर समवेयर, सो योर ऑब्जर्वेशन विल बी ये, ठीक है। मान लीजिए एक स्क्वायर है, हम यहाँ पे थे, अब इस स्क्वायर वाई जेड प्लेन के हिसाब से पैरेलल है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, दिस इज नो, सपोज इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, दे आर सेइंग दिस इज 3 into 10 to the power minus 3 Newton, this is I vector, they are saying unit vector direction particular Newton per coulomb. What is the flux of the field? The square 10 centimeter, this is 10 centimeter square, 10. तो ये तो फॉर्मूला है भाई, सिंपल। फाई क्या जानते हैं हम, दिस इज ईडीएस, डॉट प्रोडक्ट, फाई इज द स्केलर वन, सो दिस इज ई mod of E field rate in a particular field crossing on a surface that we call flux. So mod of E into mod of ds, numerical form, into cos theta. Cos theta angle between the electrical field and area vector. ये दोनों पैरेलल है, so in this case if it is, they are saying it is a parallel to this one, so it is 0 degree, this plane and this one is 0 degree. नहीं, गलत हो गया, बिकॉज ड्राइंग इज रॉन्ग, बिकॉज ये कह रहा है वाई जेड की प्लेन के बराबर है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर से जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर से जाएगा, तो भी वाई जेड प्लेन है ना, वाई जेड प्लेन इस तरह ही है ना, वाई जेड प्लेन इस तरफ है, ये अगर ऐसा है, ये वाई जेड प्लेन इस तरफ है, चलो कोई भी समझ लो, कोई भी समझ लो, दिस इज करेक्ट, नो है। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली मानते हैं कि एक्स वाई प्लेन अगर ऐसा है, तो वाई जेड एक्चुअली ऐसा है, तो जेड हमारा ऊपर ही होगा ना, परपेंडिकुलर, दिस इज एक्स वाई, this is y, this is x, and this is z. Oh, okay, so parallel this one, so this is, अच्छा यहाँ पे फील्ड कितना है, 10 into 10 to the power 3 वैल्यू, मॉड वैल्यू ले लिया, डायरेक्शन थीटा से कंट्रोल हो गया, थीटा से एक्टिव हो गया, एंड ds is the area, ds is area, integral of ds is the total area, so this is 10 centimeter square, यानी इतना मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी पॉइंट 1 स्क्वायर, दिस इज 0.01 मीटर स्क्वायर, सो 0.01, दिस इज थीटा इज 0, सो cos थीटा इज cos 0, सो दिस इज 1, सो दिस इज 3, ये कितना हो गया, 2 डिग्री माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी 3 into 10 to the power 10 ओनली, ठीक है, एंड cos 0 इज 1. So this is 30 is the flux. 30 is the flux, and it will be what is the Newton meter square per coulomb. ठीक है, Newton meter square per coulomb. This is the value of 30. Yes. Now they are saying if the angle becomes now 60, अब जो है, जो एंगल है वो अगर 60 डिग्री में प्लेन से मैप करता है, if the flux through the same square, if the normal to its plane makes 60 degree, what is the flux? If the
नॉर्मल टू प्लेन में 60 डिग्री एंगल टू द एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्सिस के तरफ पड़ना था, अब बोले एक्स के साथ अगर थोड़ा सा घूम जाए, यानी समवेयर दिस विल बी लाइक दिस। अगर ऐसा एक होता है 60 डिग्री में, ठीक है, सपोज दिस एंगल ऑफ डाइवर्सन बिकम्स नाउ 60 डिग्री, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ डाइवर्सन है इट विल बी 60 डिग्री नाउ। सो व्हाट विल फील नाउ, व्हाट इज एक्चुअली सेइंग, दिस इज cos थीटा, नाउ cos 60 हो जाएगा। cos थीटा जो है वो cos 60 हो गया, और cos 60 आप जानते हैं हाफ है। सो नाउ नेक्स्ट फाई डॉट इन 60 डिग्री एट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, दिस विल बी द सेम mod of this field into mod of area into cos 60। सो कितना हो जाएगा, दिस विल बी द सेम 10 30 आ जाएगा, और इसकी हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ cos 60 इज हाफ। सो दिस इज 15 न्यूटन। सो दिस विल बी 15 न्यूटन। अगर 60 डिग्री हो गया तो फाई डॉट एट 60 डिग्री दिस विल बी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम जो भी है, ठीक है, यूनिट। करेक्ट है ना? So we'll move to next questions. Question number 16. We are doing electrical charges in the field. 16 number exercise. क्या बोल रहा है? What is the net flux of the uniform electrical field of exercise 1.15 through a cubic of side of 20 centimeter oriented so that the face is parallel to the coordinate planes. लास्ट क्वेश्चन में जैसे उन्होंने बताया था कि भाई तीन प्लेन में एक स्क्वायर लिया था, नाउ दे आर सेइंग क्यूब है एक 20 सेंटीमीटर वाला, और वो तीनों एक्सिस की पैरेलली ओरिएंटेड है। यानी समझ लीजिए कि ऐसा एक अगर क्यूब है, यानी समझ लीजिए ऐसा एक अगर क्यूब है एंड इट इज पैरेलली ओरिएंटेड लाइक दिस, ओके, यू कैन थिंक लाइक दिस। तो ये हो गया y, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज z, and it parallelly oriented है 20 centimeter, the dimension of this cube is 20 centimeter, and electrical field was in any direction, let's say it's the electrical field of this direction, so this is will be like this, ठीक है। चलिए यहाँ से निकलेगा बिकॉज दिस फेस इज इन द ऑपोजिट दिस फेस, इस फेस से निकलेगा, ये परपेंडिकुलर फेस है, ठीक है। Now they are saying what is the net flux? What is the net flux, right? Net flux जो है टोटल सरफेस के ऊपर, टोटल जो सरफेस है, जो EDS है, क्लोज इंटीग्रल से क्लोज सरफेस, so we'll give it this one as a EDS वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट। तो इसकी जितने सरफेस है 6 सरफेस 1 2 3 4 5 एंड दैट साइड 6, तो टोटल सरफेस के अंदर आपका ये सारे फाई 1 फाई 2 डिपेंड करेगा, जितने 6 फेस होंगे, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। नाउ वी सी फॉर दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इफ द डायरेक्शन इज दिस वन एंड यू नो आवर दिस वन इज एक्चुअली वेक्टर का अगर ब्रेक करें तो क्या हो जाता है, mod of E mod of ds एंड दिस इज द cos थीटा फंक्शन। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द एरिया वेक्टर और सरफेस वेक्टर, ठीक है। तो दिस थीटा इन दिस केस हियर, ये एक्सिस के लिए अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज दिस डायरेक्शन, सो दिस थीटा इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो थीटा इज 90 डिग्री, एंड आल्सो दिस साइड थीटा perpendicular to this plane xy plane, this is also 90 degree, this is also 90 degree, sorry, this is also 90 degree, and क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, ये इधर है, तो दोनों 90 डिग्री हो गए ना, दिस वन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दिस वन दिस 90 डिग्री, एंड दैट साइड आल्सो थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। सो ऑल आर 90 डिग्री, ओनली दिस इज पैरेलल, दिस इज थीटा इज पैरेलल 0 डिग्री, एंड दिस इज आल्सो थीटा इज पैरेलल एंड दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। सो all the cases, all the faces, 90 degree faces, cos theta will be cos theta equal to cos 90, this is 0, okay। so जितने परपेंडिकुलर एक्सिस है, जितना परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर के साथ फील्ड है, उनकी आपका फाई इज 0, मतलब उस तरफ से कोई जा नहीं रहा, क्योंकि इधर ही जा रहा है, ठीक है। सो ओनली दिस विल बी दिस सरफेस
एंड दैट सरफेस। ठीक है, तो इसके कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाला क्या सरफेस होगा ना, यहाँ पे जो EDS है, व्हाट इज द फाइनाइट E इज गिवन इन दिस ईयर, सो दिस विल बी what is the net flux of the electrical field, this one, yes. So this will be what, now once see this area vector, this one, this ds area vector is considered, this is the this direction and this area vector also this direction, ठीक है, ds area vector। तो यहाँ पे जो ds है और यहाँ पे जो ds है दोनों oppositely nature and theta is 0, that's so okay, so this is phi E ds, okay, this is the value and theta is 0, cos theta is and cos 0 like this, ठीक है। and summation of कौन सा plane, suppose this is plane 1 and plane 2, if it is considered this is plane 1 and this is this side, opposite side, plane 2, so plane 1 and plane 2, ठीक है, it is cos 0 and here is cos 180, it is 0 is 180 or minus, you can say cos 180 or 0 degree then minus, you have to put this one minus, if you put 180 then it will minus will automatically come, this is opposite direction, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों केस में E फैक्टर सेम है and area also same, this is 20 square because this will also square, no, this is 20 and this is 20 and cos 0 in 1 and this one now coming, you see E, okay, then this is ds is 20 square but it is a minus because of cos 180 because the direction is opposite, so what will happen is इसमें ना फाइनल क्यों है, ये दोनों देखिए वैल्यू इज सेम ओनली द नेगेटिव सबट्रैक्शन, सो दिस इज द 0, यानी कहने का मतलब गॉसियन की जो फॉर्मूला है, जो थ्योरम है, अगेन इट बिकम्स प्रूव, कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर नेट फ्लक्स 0 होगा प्रोवाइडेड इनसाइड चार्ज इज 0, सो इन दिस केस द वैल्यू विल बी 0, ओके। नेक्स्ट विल मूव टू द अदर क्वेश्चन। इसमें हमने डेरिवेशन करके जो फॉर्मूला वाला डेरिवेशन था उसको करके डायरेक्ट दिखा दिया, लॉजिक में गया नहीं कि कैसे हुआ था, जो फॉर्मूला में हमने डायरेक्ट करके देखा था उसी को ही डायरेक्ट हमने प्रूव करके दिखा दिया, लॉजिक में जाने से हमारा एक रिवाइज छूट जाता, ठीक है, तो ये रिवाइज हमने छूटने नहीं दिया, जो हमारे डेरिवेशन था वो भी हम साथ साथ प्रूव करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरफुल, क्वेश्चन नंबर 17, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड at the surface of a black box indicate that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? And if the net outward flux through the surface of the box are 0, would you conclude that there is no charge inside the box? Why or why not? Now you see, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स वाई वुड वी यूज इन एरोप्लेन, ठीक है, कि कोई का अगर क्रैश से अंदर कुछ होगा उस टाइम में क्या क्या उसके अंदर सिग्नल जा रहा है, किस सिग्नल की वजह से उसमें क्रैश हुआ, टू गेट इट स्टार्ट लेटर ऑन इन केस ऑफ एनी मिसहैप, तो ये ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटर फ्लक्स सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस वन, ओके। सपोज वन ऑफ द बॉक्स, फर्स्ट यू ड्रॉ वन बॉक्स लाइक दिस, ठीक है, सपोज दिस इज ए बॉक्स एंड इस बॉक्स के अंदर नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यू कैन गिव विद दिस डायरेक्शन सपोज, राइट, तो नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या बोलता है, नेट फ्लक्स गॉसियन थ्योरी से हम जानते हैं कि दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कह रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो net outward flux, they are saying flux is, they are given this flux is 8.0 into 10 to the power, this one is 3 Newton meter square per coulomb, right? Now what will be the Q? Now Q will be epsilon naught का वैल्यू हम कितने जानते हैं, कितना, this is 8 point epsilon naught, वैल्यू what is this 8.85 into 10 to the power minus 12, ठीक है। तो इस केस में अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, दिस इज 5 into epsilon naught,
So in this case, phi is how much? This is net flux 8 into 10 to the power 3. Okay, 8 into 10 to the power 3, and this is epsilon naught 8 into 85 into 10 to the power minus 12. ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. This will be coming around 7. Sorry. So this is 10 to the power minus coulomb. Okay, or you can say this is 10 to the power so you can say this is 10 to the power minus 8 coulomb. So 10 to the power minus 8 coulomb मतलब कितना हो गया आपका? You can put it 7 into 10 to the power minus 2 and 10 to the power minus 6 coulomb. And 10 to the power minus 6 coulomb, we know this is 1 mu coulomb, micro coulomb. So you can say this is 0.07 mu coulomb, right? तो एक माइक्रो coulomb इसके अंदर चार्ज होगा. ठीक है, this is the value. Now they are saying if the net outward flux on the surface of the box was 0, if the net, यहाँ पे देखिए net outward flux बोल रहा है अगर 0 होती, would you conclude that there is no charge inside the box? Why and why not? हमारे लास्ट वीडियो में एक अपने उसमें दिया हुआ है, आप उसमें देखिए कि इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ. फ्रॉम दिस ओनली दे आर सेइंग इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज 0 फ्रॉम फार्मूला इटसेल्फ. अब अगर जैसे फार्मूला से हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे if phi is 0, so phi is epsilon naught. if phi is 0, ठीक है, so E by epsilon naught from this formula, Q is what? Q is phi into epsilon naught. So this is phi is 0, so this is only 0. यानी क्या हुआ, अगर इसके अंदर अब इसके अंदर कहने का मतलब देखिए, मैं आप एक्सप्लेनेशन थोड़े से करके चलाऊंगा कि यहाँ पे जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या बोलता है कि भाई इनसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, द नेट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स. अब यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि फ्लक्स कमिंग आउट इज 0, पढ़ लीजिए, कमिंग आउट इज 0, नेट फ्लक्स इज 0. If net flux is 0, so what will happen? This Q is actually inside, यानी दोनों की जो डिफरेंस है, यानी जितना आ रहा है उतना जा रहा है, जितना आ रहा है the difference is 0. What does it mean? This is if it is electrical field, magnetic field. Suppose field is magnetic field is electrical field is this one is EF1 and this is electrical field EF2. So flux will be EF2 minus EF1, यानी outward minus inward. Now this is they are saying 0. What does it mean? That means EF2 is equal to EF1, यानी जितना इसके अंदर इंसर्ट हो उतना निकल गया. ठीक है, अब उसको कॉन्सेप्चुअली मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर ये दोनों सेम है, इसके मतलब है कि जितना उसकी प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स है ड्यू टू इंडक्शन चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस्ड चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस, तो उस चार्ज के अंदर जितना उसमें वेक्टर पैदा हुआ था उतना वेक्टर भी उधर ही जा रहा है. इसका मतलब देयर इज नो अदर फैक्टर इनसाइड व्हिच कैन बैलेंस दिस वेक्टर्स, फोर्स वेक्टर्स induced due to this outside field. यानी मान लो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज रखा था तो भी ऐसे फील्ड हुआ होगा. ठीक है, इधर नेगेटिव होगा तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही थी. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एजीटी चला जाएगा बिना डिस्टर्ब करके, उधर ही चला जाएगा नेगेटिव पोल में जहाँ पे उसको मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंसंट्रेशन मिलता है, उधर से चला जाएगा. फिर वेक्टर विल अफेक्ट फोर्स वेक्टर. ठीक है, फोर्स वेक्टर्स, फोर्स लाइन. ठीक है, अब मान लो यहाँ पे अंदर में कुछ नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स रख देता इस बॉक्स के अंदर, मान लो कुछ पार्टिकल्स रहता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्जेस नेगेटिव चार्जेस वाला कोई पार्टिकल्स में रख देता, कोई मीडिया रख देता, यार मे बी व्हाटएवर चार्ज स्प्रे समथिंग लाइक दिस व्हाटएवर. तो इस केस में क्या होता है, जितना फील्ड वेक्टर जा रहा था कुछ इसके अंदर न्यूट्रल ही हो जाता है, इसके अंदर लेके वो बैलेंस करके वो वेक्टर जो है कुछ न्यूट्रल हो जाता है. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइन विल बी that time it will be some of the neutral and कुछ लोग ऐसे चले जाते, कुछ ऐसे चले जाते. तो उस केस में नंबर ऑफ जो फील्ड लाइन है दिस बिकम्स नाउ EF2 कम हो जाता है, लेस हो जाता है. EF2 उस टाइम में कम हो जाता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन कमिंग आउट ऑफ दिस बॉक्स वुड बी लेस. सो अब अगर कह रहा है कि दोनों केस में फील्ड लाइन जो फ्लक्स इज 0, दिस फ्लक्स इज 0 मींस इन एंड आउट ऑफ द फील्ड लाइंस आर सेम.
That means inside there is no charge content of the body. So that is why vector of this interaction Coulomb forces uh, intact, keep it intact without any disturbance due to cause. So you got it now? चलिए अब इस 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट दैट स्क्वायर। सपोज दिस इज स्क्वायर। अभी कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊपर इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज है, इसके ऊपर एक स्क्वायर के ऊपर एक पॉइंट चार्ज है 5 सेंटीमीटर के ऊपर, डायरेक्टली सेंटर के ऊपर ही है, मतलब डायरेक्टली से यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। सपोज दिस इज पॉजिटिव वन व्हाटएवर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड प्लेन इज 10 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर? ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इफेक्ट ऑफ दिस स्क्वायर? अब देखिए इफ इट इज पॉजिटिव, सपोज वी टेक इट इज पॉजिटिव, तो इसके अंदर कितना होगा, सारे ऐसे ऐसे आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ठीक है, यानी इसके अंदर से भी कुछ ना कुछ पास करेगा। नाउ लेट्स थिंक द क्वेश्चन ऑन हिंट्स और ट्रू क्लू इज only thing you consider this is a part of you can consider like this, a cube ले लो which is having 10 centimeter, you think like this, we can consider a cube which is having 10 centimeter dimension of every arms, ठीक है। तो ऐसा ही अगर हम क्यूब ले लेते हैं, ऐसा ही अगर कोई क्यूब ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर और उसके सोचते हैं कि उसके सेंटर में दिस चार्ज, हाउ मच इज चार्ज, दे आर सेइंग +10 माइक्रोकूलम, वो बोल ही दिया है +10 माइक्रोकूलम, ठीक है, +10 माइक्रोकूलम। अब इसमें मान रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, व्हाट इज द फाई, व्हाट इज द phi of particular surface, suppose this is A, B, C, D, ठीक है। So this is the charge, Q is the charge, this one +1, okay। Now हम जानते हैं कि पर्टिकुलर एक क्लोज सरफेस के अंदर गॉसियन की थ्योरी से, गॉसियन थ्योरी से, गॉस थ्योरी से क्या जानते हैं कि phi is net phi और net outward phi would be Q total charges over epsilon naught, right। तो हमारे केस में Q is here, this is 10 माइक्रोकूलम, 10 microcoulomb, and epsilon naught we know it, this is how much, this is 8.85 into 10 to the power -12, okay। And microcoulomb is how much, this is 10 into 10 to the power -6, that is 10 to the power -6 coulomb, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि टोटल दिस फ्लक्स विल बी कमिंग आउट ऑफ ऑल दी स्पेसेस बिकॉज इज अ पॉइंट चार्ज इज नॉट अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इट विल बी रेडियली ऑल आउटवर्ड्स ऑफ दिस पॉइंट। तो इसमें जो है टोटल 6 फेसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, दिस विल फेज 5 एंड अपोजिट साइड विल बी फेज 6। तो जितने सारे फेज है उस सारे फेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो द फाई ऑफ ए पर्टिकुलर सरफेस, फाई ऑफ ए पर्टिकुलर सिंगल सरफेस, दिस विल बी 1/6 ऑफ, this is the total sub phi, and phi of ABCD a particular area के अंदर हो जाएगा, this will be phi over 6, ठीक है। so this is the only calculation, now we can do it yourself, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन करना है तो इस तरह की कैलकुलेशन कर लीजिए, टोटल phi निकाल लीजिए, फिर उसको 1/6 कर दीजिए because you have to consider इसे cube and from cube we can go through this, ठीक है। इसको अगर आप करेंगे, देखिए टेंटेटिव, चलो इसको 6 भी कर दो ना, एक साथ में कर ही दो। सो दिस विल बी कमिंग अराउंड 10 to the power -5, दिस इज 10 माइक्रोकूलम, 10 to the power -5 into 10 to the power 12,
ये ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी 8.85 इनटू 6 फेसेस, 5 फेसेस विल बी दिस वन, दिस मच। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करके देखिए। सो दिस विल बी 10 टू द पावर 7 ओवर एंड दिस विल बी around 50. So it will be 50.52 point like this. So this will be around 1 point something 8 into 10 to the power 6. ठीक है, 10 to the power 6. ठीक है, 10 to the power 6 it will be around this one Newton meter square per coulomb. ठीक है, so we'll move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स सी। फिजिक्स की न्यूमेरिकल अगर अंडरस्टैंड कर लीजिए बहुत ही आसान लगता है, बहुत आनंद आता है करने में। आई थिंक यू ऑल्सो एंजॉय। सो 19 नंबर क्वेश्चन जो है, ये पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ ए cubic Gaussian surface of 9 cm is, what is the net electric flux to the surface? देखिए, पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, सेंटर ऑफ द cubic Gaussian surface 9 cm on the edge, what is the net electric flux of the surface? Again the question is same, घुमा के वही चीज बार बार बोल रहा है, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करा रहा है। तो मैथमेटिक्स तो न्यूमेरिकल्स क्या क्वेश्चन क्या बोला कि क्यूबिक सरफेस के अंदर 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 में भी एक पॉइंट चार्ज है, राइट? ये पॉइंट चार्ज है और वो एक क्यूबिक सरफेस के अंदर एनक्लोज है। The center of the cubic surface and then the 9 cm the cube is 9 cm like this they are saying whatever. ठीक है, so this is a cube of 9 cm, ये 9 cm का क्यूब है, वो बोल रहा है उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज है। Now they are saying what will be the net electrical flux to the surface. नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो पूछ रहा है। और गॉसियन थ्योरी से, गॉसियन थ्योरी को देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि ओनली विल बी नेट चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेट चार्ज, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी व्हाटएवर द डायमेंशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डायमेंशन है, मान लो ये कितना बोला है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इट डज नॉट मैटर ऑफ दिस वन, ओनली इन ए क्लोज सरफेस दिस विल बी टोटल नेट चार्ज ओवर द एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल, टोटल नेचर। अगर इसके अंदर आप बोलते कि पर्टिकुलर सरफेस के अंदर कितना जा रहा है, नंबर ऑफ फेसेस से डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1। एंड नंबर टू आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर दिया रहता है तो फिर फ्लक्स निकालने के लिए यू कैन गो फॉर दैट वन, दैट टाइम फाई इक्वल टू ईडीएस, दैट यू कैन कंसीडर वेक्टर लाइक दिस। उस केस में यहाँ पे फाई अगर क्यू चार्ज से हमको निकालना है तो क्यू चार्ज विल बी ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस थिंग, बिकॉज़ एक पर्टिकुलर चार्ज कितने बार हमने बोला भाई, देखिए एक पर्टिकुलर चार्ज दिस इज पॉजिटिव, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड ऑल 360 डिग्री इन द स्पेस, स्फेरिकल से। ठीक है, ऑल स्फेरिकल स्पेस के अंदर वो 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा 3 लाइन। तो सिंपली दिस वुड बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम is 10 to the minus 6 coulomb, and epsilon it again 8.85 into 10 to the minus 12. So this will be coming how much? So you got it, this is 4.4, 2 like this, so this will be 10 to the power 6, this will go up and it will be neutral, so 10 to the power 6 by 4 by 4 like this. So this will be, you can consider 40, 44 around, so 2.4 around it will come, 2.4 एक डेसिमल और ले लिया, so this will be 10 to the power 5, this one, न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 2.2 into 10 to the power 6। So next question is, this is they are saying it is calculation जो it is coming 2.2 actually, 2.4 नहीं है। ठीक है, 2.4 coming this is। ठीक है, so we'll move to the next question।
ये पॉइंट चार्ज possess an electrical flux of -1 into 10 to the power 3 Newton meters per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius center on the charges. If the radius of the Gaussian surface are doubled, how much flux would pass through the surface? What is the value of the point charge? Now the again same question घुमा घुमा के अलग अलग सरफेस के ऊपर पूछ रहा है कि भाई अगर आपका एक चार्ज बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है, ये पॉइंट चार्ज पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर से पास हो रहा है पॉइंट चार्ज, और फ्लक्स जो है, दिस नेट फ्लक्स इज कमिंग आउट इज -1 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb माइनस दैट इज नेगेटिव चार्ज इनसाइड, ठीक है, वो इनवर्ड आएगा इसके मतलब, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली नेगेटिव, तभी तो उसको बाहर से फ्लक्स मिल रहा है, ठीक है। And now they are asking if the radius of the Gaussian surface are doubled. So this radius is how much they are saying? This radius is 10 centimeter. If this radius is 10 centimeter, और इसके बाद कह रहा है कि हम एक 20 सेंटीमीटर वाला कोई रेडियस गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो उस केस में क्या फाई विल बी चेंज? नो, सेम थिंग, सेम क्वेश्चन। सो गॉसियन थ्योरम से हमने क्या देखा था, जो फाई इज Q upon epsilon naught, तो ये Q only the charge content by this one will be distributed now this whole surface, but the total number of vector line coming out of this, it is the same because this source is same, ये source तो एक ही है, उसके पास जितना charge content सेम है। हो सकता है इसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी ये बढ़ जाएगी, but number will be same, you see, ठीक है। तो उस केस में फ्लक्स तो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका r² का डायमेंशन रहता है, ठीक है, इनवर्स ऑफ डायमेंशन, क्योंकि उसकी एरिया जो है, एरिया ये बढ़ जा रहा है, इतने एरिया के अंदर ये दो ही मिला है एरिया, यहाँ इतने छोटे एरिया के अंदर इतना मिला है, जितना नजदीक जाओगे फील्ड इफेक्ट ज़्यादा होता है, जितना दूर जाओगे फील्ड इफेक्ट कम हो जाता है, बट फ्लक्स विल बी रिमेन सेम बिकॉज द नंबर ऑफ वेक्टर लाइंस, इंटरेक्शन लाइंस, फोर्स इंटरेक्शन लाइन इज सेम। सो वही क्वेश्चन दोबारा उसने अलग सरफेस के ऊपर पूछ लिया, सो दिस विल बी सेम। The question 1 is solved. Now the question 2, now they are asking what is the Q. So in this case Q will be net phi into epsilon naught. ठीक है, this is minus because inward minus charges, so phi is 8.85 into 10 to the power -12 and epsilon, this is epsilon naught, and phi is they are giving how much here, ये मतलब epsilon naught का, चलो अब तो कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो फाई इज हमारे केस में क्या दिया, -1 into 10 to the power 3 एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10 to the power -12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इट इज नथिंग, इट इज कमिंग, कितना आ रहा है ये आ रहा है, देखिए यहाँ पे -9 ले लिया, और दिस इज 8.81 ओनली माइनस, सो Q इज -8.85 into 10 to the power -9, ठीक है। यू कैन से -6 माइक्रो एंड -9 इज नैनो कूलम, सो यू कैन से दिस इज -8.8 नैनो कूलम, नैनो मतलब कितना हो गया, 10 to the power -9 कूलम, ठीक है। कूलम, मिली कूलम एंड 10 to the power -3, माइक्रो कूलम, दिस इज 10 to the power -6, नैनो कूलम, सो दिस इज 10 to the power -9, ठीक है। ऑर्डर ऐसे है, रिडक्शन ऑर्डर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या बोल रहा है, लेट्स सी। A conducting sphere of radius 10 cm has been an unknown charge if the electrical field of 20 cm from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. The point
and point radially inward, what is the charge on this sphere? Conducting sphere ले लिया, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो कह रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड 20 सेंटीमीटर के बाद, पहले तो हम स्क्वायर ले लें, ठीक है, पहले स्क्वायर ले लें। मान लीजिए दिस दे आर सेइंग रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पॉइंट से होगा, सॉरी, ठीक है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज, ये जो है इसके अंदर सेंटर में कोई चार्ज पार्टिकल्स रखा है, और इसकी जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रिकल फील्ड 10 टू द 5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, कितना उसमें न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है 27 पॉइंट रेडियली इनवर्ड, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगेन, सो दिस इज नेगेटिव चार्ज, पॉइंट रेडियली सारे आ रहे हैं, फील्ड लाइन सारे रेडियली हैं, रेडियस को इसलिए वहाँ पे पी आर लगा दिया मैंने। नाउ व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर, नाउ वो कह रहा है कि नेट चार्ज क्या है, क्यू कितना है, सपोज क्यू इज क्यू माइनस इज हाउ मच, इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हुआ है, मोड ऑफ वैल्यू, डायरेक्शन आ रहा है, हर टाइम में ये वेक्टर है, हर टाइम में उसके रेडियली इनवर्ट हो रहा है, क्यू क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हुआ, नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमने एक टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ पे, इसी में ही कह रहे हैं, कोई 10 सेंटीमीटर में या 20 सेंटीमीटर रेडियस में करें, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वन, अच्छा 20 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पे है, लेकिन 20 सेंटीमीटर की क्या नाम है, 20 सेंटीमीटर में जाके उसकी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता है एक्चुअली 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस में जाके इलेक्ट्रिकल फील्ड E at 20, सपोज दिस इज दिस वन, ठीक है, मोड ऑफ दिस वन इज दिस बल्ब 1.5 इंटू 10 टू द 3 न्यूटन मीटर पर, ठीक है, तो ये है 20 सेंटीमीटर में, यानी 20 सेंटीमीटर की स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर, ठीक है, नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, दोनों चीज को कंसेप्चुअली, न्यूमेरिकली इज नथिंग बट टू मेक यू कंसेप्चुअली क्लियर। यहाँ पे कह रहा है देखिए चार्ज तो इसमें होगा, हम गॉसियन सरफेस के ऊपर क्या देखेंगे कि ये टोटल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे जो है क्यों हम ही ले लेंगे और यही क्यों इसके ऊपर रहेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ रहा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से बोल रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर एक एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये जो है पर्टिकुलर एरिया मतलब इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की यानी यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखेगा तो क्या हो जाएगा, U will be 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught and this will be Q by R square, ठीक है, टेस्ट चार्ज तो सर ठीक है, Q by ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मॉड ऑफ वैल्यू दिस वन, ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर केस में, यहाँ के केस में क्या हो गया देखिए, यहाँ पे केस में 1/4 pi epsilon naught and radius is our case with Q is unknown, okay, Q is unknown, -1 radial inward, so R is 20 centimeter, 20 ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे मैट्रिक में ले लेंगे, यानी ऐसा यूनिट में ले लेंगे, तो 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर, दिस इज स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज बराबर ऑफ, दिस इज गिवन, दिस इज 10 टू द 3। अब इसको कैलकुलेशन करने की बात है, ये ले लिए, ये इसकी बराबर है 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर में, अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, सो Q विल बी 1.5 इंटू 10 टू द 3 दिस वन फील्ड जनरेटेड एट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 4 into 3.1 4 pi का वैल्यू ले लिया, एप्सिलॉन नॉट दिस इज 8.85 into 10 to the minus 12 and this will be 1/5, this is 1/5, so it will be 1/5 square, ठीक है, into 1/5 square, that is 25, so this is 25, ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देख लीजिए इसकी वैल्यू कितना आ सकती है, पावर तो सारे ले लीजिए 10 to the 3 and 10 to the this one, सो ये तो नैनो कूलम में चला गया, 10 to the -9 हो गया, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगा देखिए, हमें 1.5 into 4 into 3.14 into 8.85 over 25 into 10 to the -9, सो दिस इज नैनो कूलम, सो ये जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करके वही नैनो कूलम हो जाएगा, and this value will be come around, this value will come around how much, this will coming around आपका जो है
6.67 नैनोकूलम आ रहा है, 6.67 नैनोकूलम आ जाएगा दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, राइट। सो ये जो है क्यू चार्ज, दिस क्यू चार्ज इज नेगेटिवली एंड दिस इज 6.67 नैनोकूलम। 6.67 नैनोकूलम जो है वो उसके अंदर मानेंगे कि उसके अंदर है इन द कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Conducting sphere है, चलो कोई बात नहीं, conducting sphere हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर कह रहा है कि sphere है, that means area. So charge density will be area. Area density क्या है? हमने पढ़ा था sigma. So sigma is just saying 80 microcoulomb per meter square. ठीक है? Okay, and diameter is 2.4. The diameter is 2.4. Okay, this is meter. ठीक है, बड़ा, बहुत बड़ा कंडक्टर बॉडी है, स्फीयर है। फाइंड द चार्ज ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लिविंग आउट ऑफ द सरफेस। दो चीज पूछा है कि टोटल चार्ज क्या है, व्हाट इज द क्यू एंड फाई कितना है, ठीक है। अब इसने ऑलरेडी दे दिया, स्फीयर है, कुछ नहीं करना। स्फीयर का एरिया आप क्या जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। द एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है ना। ये 2.5 डाया दिया है ना, डाया दिया, रेडियस नहीं, दिस इज डाया, दिस इज डाया दिया हुआ, ठीक है। 2.4 इज द डाया, इधर से इधर तक, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे देखिए, सो दिस इज, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर होता है, सिंपल। सो पाई स्क्वायर हो गया। So pi d is how much? 3.14 into 2.4 whole square. ये मीटर स्क्वायर हो गया। So Q will be, Q कितना हो जाएगा ना, Q will be चार्ज डेंसिटी दे दिया माइक्रोकूलम पर मीटर का, टोटल इज दिस मच मीटर का। सो दिस 3.14 into 24 कितना होता है भाई, 24 कितना होता है 96, then this will be 48, so this is 6, so 576, so 5.76 into this one 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम। चलो माइक्रोकूलम रहने देते क्योंकि बहुत बड़ा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही आगे पीछे हो जाएगा। एंड दिस चार्ज विल बी, एंड दिस चार्ज विल बी कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका हो जाएगा अराउंड, वैल्यू विल बी, दिस कैलकुलेशन मैं कर नहीं रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। दिस विल बी 1.45 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू माइक्रोकूलम था 10 टू द पावर -6, ठीक है, -6 का कूलम, देखो मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम है ना, और ये 10 टू द पावर 3 के रेंज में आ रहा है, तो कितना हो गया एक्चुअली 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, और यू कैन से 10 टू द पावर 3 is 1.45 मिली कूलम, मिली कूलम, ठीक है ना। मिली इज द 10 टू द पावर -3 कूलम, ठीक है। ये तो टोटल चार्ज हो गया 1.45 इंटू, ये कैलकुलेशन आप करके देखिए, 3 5 15 15 8 अराउंड 120, तो ये जो फ्रैक्शन है दिस विल कमिंग अराउंड 1.45, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग आउट ऑफ द सरफेस इन द गॉस फॉर्मूला अगेन। सो यू गॉट द Q हियर, Q इज हाउ मच, दिस इज कमिंग 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, ठीक है। अगर ये हो गया, अब इसमें बोल रहा फाई क्या है, सो फाई इज नथिंग बट द Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 ओवर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -212 बिकॉज ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 हो गया, और इसको मैं सीधा कर देता हूँ 6 अराउंड, सो दिस विल बी अराउंड 1086 हो जाएगा, 14 जगह 84 84, सो इट इज अराउंड 6 है, तो 1/6 इंटू दिस वन आपका वैल्यू आएगा, एंड दिस विल बी कमिंग अराउंड 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8,
देखो वैल्यू को कैसे अप्रोक्सीमेशन में लेके कैलकुलेशन किया जा सकता है, टोटल कैलकुलेशन ना लेके। सो दिस विल बी न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। दिस फ्लक्स विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट को याद रखना है, फ्लक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड